Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about the expansion of functions by the method of Taylor's theorem and Maclaurin's theorem. And today we are going to start a very important topic which is called partial differentiation. तो इसका हमने एक अलग ही चैप्टर बना दिया है, चैप्टर नंबर 3 which is called partial differentiation. As you have studied in class 12th that differentiation is the function of y which is a function of x, then x is called independent variable. This x is called independent variable and this y is called dependent variable, right? Dependent variable. So when there is one independent variable and one dependent variable, only one dependent variable, then the differentiation is called perfect differentiation. अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है तो फिर डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं हम? डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड परफेक्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है, क्या नाम है उसका? परफेक्ट डिफरेंशिएशन. और जो आप पढ़ते हैं dy अपॉन dx, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट डिफरेंशिएशन. कि आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. सो देयर इज ओनली वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच यू आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन ऑफ y. ऑन द अदर हैंड, if y is the function, or you can say if f is the function of two variable x and y, then in this scenario you can see here there are two independent variables. So when you differentiate f, then you have to specify that we are differentiating with respect to which variable. Means x के respect पर differentiation करेंगे या y के respect पर. So you have to specify the differentiation with respect to one variable, one independent variable. ठीक है, like this. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट पर आपको स्पेसिफाई करना होगा. मींस with respect to x, then it is called del f over del x. And in this scenario y will be treated as constant. Okay, treat it as constant. समझ में आया? यानी जिसके रिस्पेक्ट पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिर्फ वो वेरिएबल होगा, बाकी इसके अलावा अदर सभी कांस्टेंट हो जाएंगे. सिमिलरली इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, अगर आप y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा? देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग पर्टिकुलर फंक्शन y f विद रिस्पेक्ट टू y. इट मीन्स अगर हम यहाँ पर y लिखेंगे then there will be y del f over del y and treat x as a constant. x को constant की तरह ट्रीट किया जाएगा. जैसे यहाँ के एग्जाम्पल में आप समझो, फर्स्ट वाला, in this scenario if there is a function y is equal to sin x like this and you have to find out dy upon dx, then it will be quite easy and will become cos x like this. But in this scenario, in the second example, if we differentiate any function f is equal to sin x plus cos y like this, and if you are differentiating it with respect to x, then del f over del x, x के respect पर जो होगा, it will be differentiated only cos x like this, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन करना है, and cos y will be 0 here like that. And if you differentiate with respect to y, del f over del y, then the first term will not contain y, so its derivative will be 0, and plus second term cos का क्या होता है? माइनस sin y like this. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए that in these two scenario, when we are differentiating with respect to one particular variable, independent variable, then
the other independent variables will be treated as the constant. उन्हें क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. सो पूरा का पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन इस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. आपको ये समझ में आया मैंने क्या समझाया? When you are differentiating with respect to one variable, then all the other independent variable will be treated as a constant. एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट पर x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे. बट इन दिस सिनेरियो यू हैव टू डिफरेंशिएट ओनली विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल. तो जो अब तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने वो परफेक्ट डिफरेंशिएशन ही है. नाउ वी आर मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है. तो क्या पढ़ेंगे सर हम? यस, इन दिस चैप्टर we will study the differentiation of multivariable function, or you can say the function of more than one independent variable, right? Functions of several variable means there may be a series of independent variables. जैसे यहाँ पर दो हैं तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, right? So we will differentiate multivariable function and especially we will differentiate bivariate functions. 2 वाले को ज्यादा हम यूज कर रहे होंगे because we are studying in the xy plane, argand plane, xy plane हमारे point of डिस्कशन का एक 2 डायमेंशनल फ्रेम होता है. सो टॉपिक नंबर 1 क्या है? टॉपिक नंबर 1 है पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय डायरेक्ट मेथड. ये डायरेक्ट मेथड हम देखेंगे इसमें कि डायरेक्ट मेथड में क्या क्या डिफरेंशिएशन किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है. सो डायरेक्ट मेथड. सेकंड थिंग इज दैट ऑयलर्स थ्योरम. वी विल स्टडी दिस थ्योरम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल थ्योरम फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बिकॉज ऑल द फ्लूइड्स एंड लिक्विडिटी एंड फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड will be governed by Euler's theorem. इसके हेल्प से हम जितने भी दुनिया के अंदर फ्लो ऑफ लिक्विड्स होते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, एयर का फ्लो, लिक्विड का फ्लो, तो उसमें ही काम आता है कई बार. ओके, सो दीज आर द 2 important topics in which we will study in this chapter. Now y is equal to f of x. ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन अदर वेरिएबल treated as the constant. ठीक है, कहानी समझ में आ गई यहां तक? अब एक और एग्जांपल जरा समझो आप. देखो जैसे लिखा है, अब समझने में पूरा फोकस लगाना, ठीक है? समझने में. फाइंड del u over del x and del u over del y when u is equal to log x square plus y square. This is the function of two variable x and y. And now you have to differentiate it with respect to x and y. Means u का x के रिस्पेक्ट पर and u का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, बात समझ में आई? ओके, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y एज वेल. तो देखो जरा ध्यान से देखना. व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, देन log का डेरिवेटिव पहले करेंगे 1 upon x square plus y square. This is the derivative of logarithmic. As you know that log t is equal to 1 upon t. Then consider this function x square plus y square as t. इसको t की तरह कंसीडर कर लीजिए. Then log t का 1 upon t. अब इस t का भी तो करना है. t means x square plus y square. So if you are differentiating it with respect to x, then x square का डेरिवेटिव होगा 2x and y इसमें कोई x नहीं है. That's why it will be differentiated like 0. So finally you will get 2x upon x square plus y square. आया समझ? तो ये आ गया del u over del x. And simply we will write it as ux. ux suffix में छोटा सा x लगा दो, means u का differentiation with respect to x हो रहा है. Similarly, if you differentiate u with respect to y, then uy is equal to del u over del y, means 1 upon पहले ही आएगा x square plus y square, and after that you have to differentiate it with respect to y as well. So y square का derivative भी कितना होगा? 2y होगा. Then finally you can see here 2y is equal 2y upon x square plus y square. These are two fundamental derivatives. तो आपके सामने ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, है ना? एक और जरा सवाल सीखो. जब यहां तक पहुंचे गए तो ये लो. क्वेश्चन नंबर 2. Find the first and second order derivative of this function u equal to x cube plus y cube plus 3axy. First and second derivative means आपको निकालना है ux, uy, uxx, uyy and uxy. डबल डेरिवेटिव्स को uxx कहते हैं, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को uyy कहते हैं, एंड डबल डेरिवेटिव वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू y को uxy कहते हैं. ठीक है, तो वो देखेंगे अभी सवाल में हम. नाउ गिवन फंक्शन इज दिस u इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3axy. x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3
xy. Now if you differentiate it with respect to x, then I'm writing here ux, x के रिस्पेक्ट पर वन टाइम. तो क्या होगा सर, 3x स्क्वायर y क्यूब 0 हो जाएगा, 3a x का 1 हुआ, y एज इट इज कोफिशिएंट की तरह. तो क्या होगा 3x स्क्वायर एंड 3ay कैसे आया, बिकॉज x इज डिफरेंशिएटेड लाइक 1 एंड y is the coefficient, that's why we can write it 3ay. Clear? Next, if you differentiate it again with respect to x, then uxx is the double derivative of u with respect to x. इसका x के respect पर double derivative है. Now 3x square will be differentiated like 6x and 3ay is free from x, that's why its derivative is 0. So 6x हो गया. ठीक है, बात समझ में आ गई. Now second thing, if you differentiate the equation number 1 means function u with respect to y first time, so please focus on the terms which is the terms of y. देखो x क्यूब में कोई y नहीं है, that's why it will be differentiated as 0. y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर एंड अगेन 3a x as a coefficient and y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया, so it will be differentiated as 3ax. again if you differentiate it with respect to y, देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, देन uy इज इक्वल टू 6y. कैसे हुआ, 3y स्क्वायर का होता है ना 6y एंड 3ax इट इज फ्री फ्रॉम y, दैट्स व्हाई इट्स डेरिवेटिव विल बी 0. तो यहां पर 6y आ जाएगा ओनली. ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं. एक और चीज इसमें बची है कि आप x वाले का y के रिस्पेक्ट पर या y वाले का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना चाहोगे, तो देखो इसके लिए आपको यहां समझना है, फॉर क्रॉस डेरिवेटिव uxy और uyx. तो देखो किसी फंक्शन का xy मींस क्या होता है, x के रिस्पेक्ट पर और y के रिस्पेक्ट पर ये डेरिवेटिव्स इस तरह पढ़े जाते हैं. जैसे यहां लिखा ना xy, तो ऐसे बोलेंगे xy मींस अंदर की तरफ से आपको पढ़ना है, इधर से ऐसे, फर्स्ट y के रिस्पेक्ट पर फिर x के रिस्पेक्ट पर. तो या तो y वाले का x के रिस्पेक्ट पर करो तो xy मिलेगा, और yx करना है तो पहले x वाले का y के रिस्पेक्ट पर करो. तो ध्यान से देखो इसको, फॉर uxy डिफरेंशिएट uy विद रिस्पेक्ट टू x. uy जो है उसका x के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव करेंगे, देन uxy विल बिकम 3a. देखो x वाले का y के रिस्पेक्ट पर या y वाले का x के रिस्पेक्ट पर क्या कर रहे हैं, पहले डिफरेंशिएटिंग y वाले का x के रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं. कौन है y वाला, ये है दिस वन. सो uy is already differentiated with respect to y and you are going to differentiate it with respect to x. x के रिस्पेक्ट पर करेंगे सर, so 3y square is free from x. 3ax contains x only, so the derivative of x will be 1, so the output will become 3a. देखो तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3a. और second thing, for uyx if we differentiate ux with respect to y, x वाले का y के रिस्पेक्ट पर करेंगे, तो देखो ये x वाला है ux and differentiate it with respect to y, so this term 3x square is free from y, that's why it will be differentiated like 0 and 3a y का कितना होगा 1, so again the derivative will be obtained like 3a. तो दोनों की दोनों वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल आ रही है, एंड फॉर दिस होमोजेनियस फंक्शन में क्रॉस डेरिवेटिव हमेशा याद रखना बराबर होते हैं. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने इस क्वेश्चन से आपको समझना है, दैट फॉर द होमोजेनियस फंक्शन विच हैव द सेम डिग्री ऑफ ईच टर्म, जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप 3 डिग्री एंड नो अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दो, फिर मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको. लेकिन ये होमोजेनियस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस के लिए ज्यादातर ये होमोजेनियस फंक्शन के लिए होता है, क्योंकि यूलर्स थ्योरम जो सेकंड टॉपिक है वो उसी के लिए बना है. बट समटाइम्स किसी नॉन होमोजेनियस में भी कर सकता है, लेकिन नहीं भी कर सकता फॉर नॉन होमोजेनियस में, बट 100% होमोजेनियस के लिए जरूर करेगा, है ना, ये क्रॉस डेरिवेटिव इक्वल. तो अब आगे देखो, इसमें देखो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है. क्वेश्चन नंबर यस कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर 3. ये लो, if u equal to a to the power x y z, show that del 3u over del x del y del z 1 plus 3 x y z plus x square y square z square into e to the power x y z. देखो एक बात थोड़ा सा समझ लो ध्यान से. पहले देखो जो गिवन है ना वो है u is equal to a to the power x y z in the powers, मतलब ये फंक्शन ऑफ x y z तीनों है, फंक्शन ऑफ x y z 3 ऐसे. और इसके बाद आपको टू फाइंड निकालना है
टू फाइंड क्या निकालना है सर? देखो del 3u अपॉन del x del y del z, ऐसे। तो इसको ना आप ऐसे समझिए कि ये वैल्यू असल में क्या लिखी है। दिस इज रिटन लाइक del by del x of del by del x of del by del y of del f over del z या del u over del z, लाइक दिस, ऐसे लिखा है। ये है इसका मीनिंग, मतलब समझे? मीन्स यू हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू z, ये फर्स्ट टाइम होगा डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट है। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ये सेकेंड टाइम है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक, ओके। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये थर्ड टाइम होगा। ऐसे आपको समझना है। मीन्स ये फंक्शन जो गिवन है, आप इसका पहले x z के रिस्पेक्ट पे करोगे, जो आएगा उसका y के रिस्पेक्ट पर, और फिर जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है। सो दिस इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स z, y एंड x। तो देखो समझो कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा है, देखो इसे, हाँ जी, यस। सो गिवन फंक्शन इज u इक्वल टू e टू द पावर x y z। ये मैंने आपको डिकोड कर दिया है कि पहले आप z के रिस्पेक्ट पर, फिर y के, फिर x के रिस्पेक्ट पर करेंगे। तो इसी तरह से आप यहां पर समझिए, इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट, देन uz और del u over del z will be written like e का तो e होगा and the derivative of z will be 1, so the coefficient xy into 1 will become xy। ये xy कहां से आया? पावर का भी तो करना पड़ेगा ना xy z का। सो xy z में z का 1 होगा एंड द डेरिवेटिव ऑफ xy एज अ कोएफिशिएंट लिखा होगा, xy into 1 will become xy। Now if we differentiate it with respect to y, then there is xy which contains y and e to the power xyz is the function of y as well। इसमें भी y है, इसमें भी y है, so you have to apply the product rule to differentiate it with respect to y। But in this scenario you are differentiating with respect to y, so x और z constant की तरह रहेंगे as a coefficient। So देखो e as it is, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये एक तरह से सेकेंड फंक्शन है। So first function as it is, x y में y का हुआ 1, so x as it is coefficient, again x y as it is and you have to differentiate e, तो e का क्या हुआ, e to the power x y z into x z, सही है। अब आगे बढ़ने से पहले e कॉमन ले लीजिए, तो हमने क्या किया, e कॉमन ले लिया, देखो यहां पर e to the power x y z and x plus x square into y z, तो क्या मिला आपको, del 2u over del y del z। Now next step, the third step is to differentiate it with respect to x। So del 3u over del x del y del z में आप इसके थर्ड डेरिवेटिव को निकालेंगे, तो again you can see here that you are differentiating with respect to x, so this is the function of x and this bracket is also the function of x, so you have to apply the product rule in between these two functions। So again first function as it is, second function with respect to x, differentiation क्या होगा, x का 1 and again x square का 2x, yz as a coefficient, clear। अब आप ये सेकेंड है, सेकेंड this is second function, okay। now second as it is x plus x square by z and e का फिर से e हुआ, but you are differentiating it with respect to x, so x का कितना होगा 1 and yz will be as a coefficient। अब तीनों से आप e कॉमन ले लीजिए, so e कॉमन 1 plus 2xyz ये लिखा है and ये जो yz है इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कर सकते हैं ऐसे, तो इसको हमने यहां पर मल्टीप्लाई करा दिया ब्रैकेट के अंदर। सो देखो क्या बनेगा, x इंटू वाई जेड, दिस इज एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड, ये तो डबल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड यू कैन सी हियर दैट 2xyz प्लस xyz विल बिकम 3xyz along with e to the power नहीं लिखा, ठीक है, e की पावर और लिख देते हैं, along with e to the power xyz and this is the final answer, ठीक है। तो इसमें e की पावर xyz और आ जाएगा ऐसे,
ठीक है, ये ए कॉमन आ गया और यही आपको इसमें प्रूव करना था. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो व्हाट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन, दैट यू हैव टू फिगर आउट दैट विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी डिफरेंशिएटेड फर्स्ट. दिस इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो इधर से चलना है आपको, पहले z के रिस्पेक्ट पर, पहले इधर से z के रिस्पेक्ट पर, फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट पर, फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट पर, ऐसे चलना है फ्रॉम इनसाइड. क्योंकि ऑपरेटर क्या होते हैं ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर लेफ्ट साइड से अप्लाई होते हैं. तो इस तरह से पहले आप z के रिस्पेक्ट पर, फिर जो आएगा प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर e कॉमन ले लो, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर से e कॉमन, फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ, एंड फाइनली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट जो आपको शो करना था. ठीक है, सिंपल था. ठीक है, अब एक और सवाल आप देख लीजिए. देखो कितना अच्छा सवाल है, समझ में आ जाएगा अभी आपको. यस, दिस वन. ये लिखा है सवाल. क्या लिखा है, ध्यान से देखो. f of x y equal to x square into tan inverse y upon x minus tan inverse x upon y, and you have to prove that these two derivatives f of x y is equal to f of y x. ऐसे समझ लो आप, डायरेक्ट समझ लो. ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है. तो यानी क्रॉस डेरिवेटिव इक्वल करने हैं आपको, पहले x के रिस्पेक्ट पर, बाद में y के, फिर y के रिस्पेक्ट पर, बाद में x के, ऐसे इक्वल करना है. सीक्वेंस समझ लो. If first you are differentiating with respect to y, then x के रिस्पेक्ट पर, and again if you are differentiating with respect to x, then y के रिस्पेक्ट पर, and these two result will be same. अब थोड़ी सी बात जरा ध्यान से सुन लो. If we differentiate it स्टार्ट पॉइंट में tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t का क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये होता है. ठीक, और अगर कहीं हमें 1/t का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो -1/t स्क्वायर विल बी डिफरेंशिएटेड डायरेक्टली, है ना. आपको पता ही होगा किस तरह से होता है. जैसे आप 1/t को लिखते हैं तो आप t टू द पावर -1, फिर -1t टू द पावर -2 ऐसे लिखते हैं, एंड -1/t स्क्वायर लाइक दिस, इस तरह से लिखते हैं. तो डायरेक्टली 1/t का -1/t स्क्वायर होगा. तो सिमिलरली समटाइम्स अगर हम डिफरेंशिएशन करना होगा 1/y का, तो आप क्या करेंगे, -1/y स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन है. ठीक, सिमिलरली अगर कहीं 1/x का डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो आप कहना -1/x स्क्वायर लाइक दिस. ठीक है, विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ट्वाइस, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y, देन with respect to y, then x, and those two results should be equal. देखो इसको, ये लिखा है आपके सामने, समझने पे थोड़ा ध्यान देना. f of x y equal to x square tan inverse y upon x minus y square tan inverse x upon y, and we are going to differentiate it with respect to x first. तो ये x square और tan inverse y upon x दोनों x के फंक्शन है, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल. बट यहाँ y स्क्वायर में x नहीं है, बट दिस इज tan इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ x, सो वी विल डायरेक्टली डिफरेंशिएट tan इनवर्स. बट इन द फर्स्ट टर्म दीज आर टू फंक्शंस ऑफ x, सो वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल. मींस x स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ tan 1/1 प्लस t स्क्वायर, समझा है ना, ये t है. और फिर t का भी होगा तो t में देखेंगे 1/x नीचे लिखा है, y/x है, तो -1/x स्क्वायर लिखा जाएगा, -1/x स्क्वायर. देखो ये y/x स्क्वायर का, प्लस आगे देखो क्या होगा, tan इनवर्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का 2x होगा, है ना. x स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा. आगे फिर -y स्क्वायर tan इनवर्स -y स्क्वायर tan इनवर्स, ये लिखा tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 1/y. बताओ ये लाइन समझो और फिर बताना मुझे किस तरीके से आएगा आपको, बोलो बताओ, समझ में आया क्या यहां तक? नहीं आया? क्या लिखा है, x square tan inverse y upon x, so you have to differentiate it with respect to x, then apply product rule in these two terms. x square as it is, tan inverse का 1/t, t समझो इसे, t square, तो y square x square, and और इस t में 1/x लिखा है, तो 1/x का -1/x square हो जाएगा. Similarly tan inverse as it is, x square का 2x, और आगे देखो y square as a coefficient and tan inverse का 1/x
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये, एंड 1 अपॉन वाई का ये इस तरह से आगे सीधा x का 1 अपॉन वाई एज अ कोएफिशिएंट। आफ्टर दैट क्या करना है, देखो इसको थोड़ा ठीक करो, सिंप्लीफाई, एलसीएम लो इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो एक्स स्क्वायर घुमाकर हमने ऊपर लिख दिया, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर, और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x tan इनवर्स ये पूरा एज इट इज, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर एलसीएम, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 अपॉन वाई एज इट इज। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई, देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर कट कर सकते हैं आप, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट। सो फाइनली यू कैन सी माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x tan इनवर्स एज इट इज, और यहां पर भी एक y कैंसिल कर दो, दिस y विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम 1 पावर एंड y स्क्वायर इनटू y विल बिकम y क्यूब। अब आगे देखो, ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है ना, इनका एलसीएम सेम है, देख रहे हो आप, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और फिर से ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक, एंड 2x tan inverse as it is. So finally you will get minus y plus 2x tan inverse y upon x, equation number 2. ये आपके पास fx आया, मतलब x के रिस्पेक्ट पर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट इट फर्दर विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब y पे ध्यान देना, देखो यहाँ y है तो -1 हो जाएगा, 2x एज अ कोएफिशिएंट रहेगा tan इनवर्स का, पहले वही 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और t देखो क्या है y अपॉन x, तो y का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप कि एफ वाई एक्स करना नेक्स्ट, तो -1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो ये 2x है एज इट इज, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस ये सामने y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x एज इट इज। अगेन यू हैव टू टेक इट्स एलसीएम, देखो एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये लिखा है, फिर इसे फर्दर ऊपर पहुंचा दो, तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइक दिस, एंड देन टेक एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स -1 एंड प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये एलसीएम में ऐसे मल्टीप्लाई करेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अपॉन पर 1 समझ लो, है ना, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का एक माइनस का, सो फाइनली यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो एक पार्ट आया, पहले आपने x के रिस्पेक्ट पर किया, फिर y के रिस्पेक्ट पर, नाउ यू हैव टू टेक इट्स रिवर्सिबिलिटी, मींस फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, किसको, इक्वेशन 1 को, और ये है आपके पास इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन ही है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x, y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, सो वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर, y स्क्वायर tan इनवर्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट इन दिस टर्म x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x, यहां पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ y, सो y is the angle in tan inverse only, so you have to apply the product rule in second term, but first term will be differentiated directly, सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन टी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अभी समझाया था ना, तो वो टी स्क्वायर हो गया, एंड आफ्टर दैट यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y, दैट्स व्हाई y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 एंड अपॉन x एज अ कोएफिशिएंट। अगेन आगे देखो, ये y स्क्वायर एज इट इज, tan इनवर्स का पहले 1 upon 1 plus t square, this is t x upon y, and then you have to differentiate this t x upon y, 1 upon y minus 1 upon y square, तो x as a coefficient and minus 1 upon y square is the derivative of 1 upon y, and then प्लस आता है बीच में, लेकिन होगा क्या, बाहर से माइनस है तो फिर ये माइनस ही हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव टू y and tan इनवर्स एज इट इज। फाइनली आप इनका फिर से एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आया, और एक x यहां से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वापस घूमकर एक्स क्यूब बन जाएगा। यहां पर भी देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर देना आप, ये वाला वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो। नेक्स्ट ये वाई स्क्वायर घूमकर ऊपर पहुंचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2y tan इनवर्स एज इट इज। आफ्टर दैट यू कैन टेक कॉमन ऑफ दीज टू टर्म्स विच इज सेम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड यहाँ क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, you can take common x common आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, and that will be cancelled by the denominator like this,
या देखो x कॉमन, तो फिर ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, सही है। Finally, you will get fy is equal to x minus 2y tan inverse x upon y. So this is your fourth equation and you have found this equation by differentiating the given function with respect to y first. And now what to do? You have to differentiate it with respect to x. अब हमें इसका क्या करना है, x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है। Now differentiate x के रिस्पेक्ट पर 1, यहाँ 2y एज अ कोफिशिएंट रहेगा, देन tan इनवर्स का 1/1 प्लस t स्क्वायर से ही x स्क्वायर y स्क्वायर हुआ, एंड देन x के रिस्पेक्ट पर करें तो x का 1 होगा 1/y एज अ कोफिशिएंट। नेक्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम और यहाँ इन्हें कैंसिल कर सकते हैं आप, y से ये y कैंसिल, एलसीएम ले लो x स्क्वायर y स्क्वायर and y square will be reversed, so 2y square upon x square plus y square, and after taking common you can see here that 1 will be multiplied to the, ऐसे इसको multiply होगा, so x square y square minus 2y square upon x square plus y square, and once again you can see here the fxy is equal to x square minus y square upon x square plus y square, और इससे पहले वाली की वैल्यू क्या थी, देखो सेम वही वैल्यू, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप ये दोनों के दोनों प्रूफ कर सकते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बस ये क्वेश्चन को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन आपके सॉल्व करने के लिए एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन करके देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक होमवर्क की तरह है आपके लिए। सो यू विल डिस्कस दिस क्वेश्चन बाय योर फ्रेंड्स एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और इन सभी के सभी वीडियो लिंक्स का आपको यहाँ पर सोशल मीडिया पर पता लग जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये आपके जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं जितने भी, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।